Good morning, dear students. Today we are here with our English topic supplementary 1, The Lost Child part 3. See, in part 1 and 2, we have discussed a lot about the story, right? In part 1, we have discussed the things that is the author of our story is the Mulk Raj Anand, right? First thing. Second, this is a story about a lost child, यानी एक बच्चा मेले में खो जाता है, right? So a child enters in a fair with his parents, okay? Or after wintry shades, after enjoying winter in the houses, right? Finally, they have come up in the market, or we can say in the fair after so long time. वो घर के बाहर लोग निकले हैं, right? Because it's now in a spring season. और ये जो fair की हम discuss कर रहे हैं, that is a spring season fair या spring festival का ये एक fair है. Fine, they are enjoying this festival well. And what happens कि वो वहाँ पे fair में जा रहे हैं, right? They are enjoying the fair. I can say that the child is most enjoying the fair, right? The child is attracted with lots of things. वो बच्चा हर एक चीज को देख रहा है, right? उसने बहुत सारी चीजों को देखा, उसने नेचर को, उसने एनवायरमेंट को एंजॉय किया, उसने मस्टर्ड फील्ड को एंजॉय किया, राइट? ही एंजॉयड दैट मस्टर्ड फील्ड. देन आफ्टर ही इवन एंजॉयड द बलून्स. उसने बलून्स देखे, उसने गार्लैंड्स देखे, उसने लॉट्स ऑफ स्वीट्स देखी, एंड आउट ऑफ दैट ही लव्ड बर्फीज अ लॉट एंड ही आल्सो डिमांड फॉर द बर्फी, राइट? एंड देन उसने स्नेक चार्मर को देखा. ही एंजॉयड दैट शो आल्सो. फाइन. एंड so in that manner I can say he was just so much excited and happy to see all such things in the market, sorry, in the fair, okay? And he was just enjoying it. And finally he watched what he sees, a merry-go-round, okay? Merry-go-round, that is a round about here, okay? So he was so excited to see that the man, women's or children's who have been seated in that fair, they were enjoying it a lot, ओके? उनकी हंसने की आवाज, उनकी खुश होने की जिस तरीके से वो देख रहे हैं, एंजॉयिंग द मैरी गो राउंड. ही वांट्स टू सिट देयर एनी हाउ. Fine. So he was just busy in watching that merry-go-round, and he just boldly requests his parents that he wants to see. But what happens कि he didn't get any reply from his parents. Okay, उसे कोई reply नहीं मिला. And then he looked forward for his parents replied, but he found that his parents was not there, right? So we can say he was separated by his parents. वो कहीं मेले में खो गया, उसके parents कहीं और चले गए, वो कहीं अलग हो गया अपने parents से. He was crying and crying, right? वो उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है. वो पहले बहुत रोया, फिर यहाँ वहाँ हर एक directions में इधर and तिधर he was finding out his parents, right? He was looking forward that he must get his parents anyhow. वो लोगों को देख रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम जा रहा है. द फेयर इज बीइंग क्राउडेड अ लॉट. फाइनली एक टेम्पल एंट्रांस पे वो पहुंचता है, वहां और भी ज्यादा भीड़ है. एंड अब उसे भी ये लग रहा है that it is impossible to find his parents in such a crowded place, right? But even though he was just calling out his parents, that is father mother, so that शायद उसके पेरेंट्स उसकी आवाज सुने और कहीं से उसे कोई जवाब मिले. सो अब तक हमने यहाँ तक ये स्टोरी देखी. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू दिस. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, father." So here what the author wants to say, that the poor child struggled to thrust, यानी कि वो बच्चा इतना दौड़ा, इतना यहाँ वहाँ हुआ है, यहाँ वहाँ देख रहा है. he is trying to find out his mother, father, right? He struggled a lot between their feet, right? But knocked to and fro. So knocked to and fro का मतलब होता है here and there. to and fro का मतलब होता है here and there. he knocked everywhere. knocked यानी वो हर एक जगह जहाँ पे वो फेयर में जो भी जितनी भी जगह थी वो सब जगह घूम लिया. everywhere, right? By their brutal movements. Brutal movements यानी this is the time where he feel one of the bad movement, we can say, ठीक है? कि brutal यानी उसकी हालत बहुत खराब है. This was the we can say worst problem he has faced ever. He might have been trampled underfoot. I can say walked over.
राइट, इट्स गिवन. सो व्हाट ही वांट्स टू से दैट वो बहुत हद तक इतना चल चल के भी अब थक गया है. हैड ही नॉट श्रेक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, इवन उसने इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के जैसे वो बार बार आवाज लगा रहा था मम्मी पापा, राइट, दैट इज फादर मदर. उसका हाईएस्ट पिच यानी हमारा जो वोकल क्वालिटी होती है, जो जोर से चिल्लाना, दैट इज हाईएस्ट पिच. उसने वो भी कर लिया है, राइट. पर अभी तक ही इज नॉट गेटिंग एनी सच रिजल्ट, लाइक उसे अभी तक उसके पेरेंट्स नहीं मिले, या शायद उसके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उसे ढूंढ रहे होंगे. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and, stopping with great difficulty, lifted him up in his arm. Now what happened कि इतनी भीड़ भाड़ में, राइट, सर्जिंग क्राउड मतलब वी ऑल नो कि वहां पे उस फेयर में कितनी भीड़ थी, राइट. पीपल आर जस्ट, वी कैन से सर्जिंग का मतलब होता है क्राउड और नेचुरल फोर्स, राइट. मूव सडनली एंड पावरफुल फॉरवर्ड अपवर्ड, यानी आप एक जगह पे खड़े हो पर जगह पे इतनी भीड़ है कि ऑटोमेटिकली आप आगे ही जा रहे हो, बिकॉज ऑफ वो सारे लोग धक्का लगा रहे हैं या पुश हो रहा है. और एनीवेज आप किसी एक जगह पे रुक के टिक के नहीं रह सकते हो, इतनी भीड़ है वहां पे. फाइन. सो इतनी डिफिकल्टी में एक बंदे को कैन एबल टू हर्ड हिज क्राई, उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी. बहुत डिफिकल्टी से वो वहां पे रुका. डिफिकल्टी इसलिए बिकॉज वहां भीड़ इतनी थी. जैसे यहाँ पे वो नहीं, ट्रेन में आप अगर मुंबई लोकल में अगर आप ट्रेन में अगर कभी किसी ने ट्रैवल किया है तो वहां पे आप जस्ट बाहर भी खड़े रहोगे तो धक्के से ही अंदर चले जाओगे, अगर वहां गेट के पास खड़े हो तो धक्के से ही बाहर भी आ सकते हो, इतनी भीड़ होती है. सो दिस वाज द सेम सिचुएशन हियर कि हियर आल्सो इट वाज सो मच क्राउडेड, राइट. सो ही रिक्वायर्ड अ ग्रेट डिफिकल्टी टू स्टॉप देयर. और बहुत ही डिफिकल्ट बिकॉज वो बच्चा रोए जा रहा है. यू कैन सी इन द पिक्चर, अब ये पिक्चर चेंज हुआ है. पहले जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ था, अब ये दिखाया है कि वन ऑफ द मैन इज ट्राइंग टू कंसोल हर, राइट. सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो उसे लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसे अपने आर्म्स में उठाने की कोशिश कर रहा है. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stood clear of the mass. राइट. अब फाइनली जब वहां पे थोड़ी बहुत ऐसी जगह हो गई या थोड़ी बहुत ऐसा स्पेस मिला, राइट, मास यानी भीड़, पब्लिक, ठीक है, उन पब्लिक में से थोड़ी बहुत ऐसे वो थोड़ा क्लियर हुआ रास्ता, तो उस बच्चे के पास वो गया और उस बच्चे को क्या क्वेश्चन किया, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चे, और तुम किसके बेबी हो, तुम किसके बेटे हो. The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब वो बच्चा और ज्यादा जोर से रोने लगा बिकॉज अब वो थक चुका है, उसकी हालत बुरी हो चुकी है, वो इतना दौड़ा है, इतना स्ट्रगल किया है उसने, बट ही इज नॉट गेटिंग हिज पेरेंट्स राइट नाउ, ओके. और ये कब से वो कर रहा है, and he is crying more bitterly, right. पहले वो रो ही रहा था पर इस इंसान ने जब उसे ये क्वेश्चंस किया तो और जोर से रोने लगा. I want my mother, I want my father, the only thing now he wants that is parents, right. उसके पेरेंट्स ही अब उसे चाहिए, जो अब वो हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि अब उसे कोई चीज नहीं चाहिए. Now we can able to see his love for his parents, that now he only wants that is his parents. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. अब वो बच्चा क्योंकि रो रहा है, अब उसे चुप भी कराना है, राइट. तो उसे चुप करवाने के लिए, उसे सूद फील करने के लिए, सूद इन द सेंस वी कैन से कि उसे काम डाउन करने के लिए द मैन वाज ट्राइंग कि उसे वो काम डाउन हो, और इसके लिए उसने क्या कहा कि तुम राउंड अबाउट में जाओगे, तुमने कभी बैठे हो, विल यू हैव अ राइड टू द हॉर्स, तुम्हें हॉर्स की राइड करनी है, राइट. दैट इज जो राउंड अबाउट पे वो बच्चा बैठना चाहता था, राइट. सो वो पूछ रहा है कि तुम बैठना चाहते हो वहां पे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. सो वहां पे उस रिंग के पास वो पहुंच गई, उसने ये पूछा कि तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम्हें मजा आएगा. वो इसीलिए ये कर रहा है, द मैन वाज डूइंग बिकॉज ही वांट्स टू सूद हिम, ही वांट्स टू काम डाउन हिम, राइट. वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है, या उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर बच्चा चुप हो जाए रोने से तो वो कुछ आगे कर सके. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. But अभी भी उसका थ्रोट अब रो रो के गला एकदम बैठ गया है, राइट. उसका थ्रोट वी कैन से कि टोर यानी फट गया है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं कि उसका जो थ्रोट है वो इतना चिल्ला रहा है, इतना रो रहा है, राइट.
एंड कब से उसने शायद पानी भी नहीं पिया हो, तो उसका गला वो बिल्कुल सूख गया और ऐसा लग रहा है कि जैसा अब तो उसकी आवाज भी फट रही है और वो ऐसे बहुत ज्यादा दुखी है, राइट। एंड इन दैट थाउजेंड श्रिल सॉब्स वो सिर्फ एक ही बात बता रहा है, दैट इज मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, आई वांट माय फादर एंड मदर। मतलब अब उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसके पेरेंट्स उसे मिल जाए, वो घर चला जाए, he rest he wants nothing, right? The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो मैन उसके साथ चलते चलते कहाँ तक पहुंचा, उसी जगह जहाँ पे वो स्नेक चार्मर अभी भी वो फ्लूट प्ले कर रहा है. You can see in the picture it's given where the man and the boy is standing and behind that you can see the snake charmer. इसे snake charmer कहते हैं, okay? और जिस तरीके से वो बीन बजाता है, वो फ्लूट प्ले करता है, उस हिसाब से वो स्नेक उसके रिदम पे डांस करते, we can say like that, okay? So that cobra is swaying यानी वो हिल रहा है या वो स्मूथ मूवमेंट दिखा रहा है. फाइन. Listen to the nice music, child, he pleaded. अब वो उसे फिर से उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है. He is trying to divert his mind. पहले उसने कहा कि क्या तुम राउंड अबाउट में बैठना चाहोगे? It would be very enjoyable. You have ever sat on the horse, right? So he was just trying to divert his mind, but फिर से वो रोया और he was just asking to about his parents. Now what happened? Now he's again trying to divert his mind, and what he's asking for कि just listen this music, it's so nice, right? वो plead कर रहा है. वो plead यानी वो जैसे request कर रहा हो या उस तरीके से उस बच्चे को console करने की कोशिश कर रहा है. But the child shut their ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother and father. अब वो child क्या कर रहा है? वो बच्चा अपने कान में उंगली डाल देता है, मुझे कुछ नहीं सुनना in the sense, और वो जो अब तक जिस आवाज में बोल रहा था उससे डबल पिच्ड वॉइस में वो चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले जाओ. I want my father and mother, right? अब उसकी हालत बच्चे की और खराब हो रही है. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and question him. Now what happened? फिर से मतलब अब क्या हो रहा है? देखो कि जिस तरीके से the child came to the fair with his parents, right? And the way the things started to we can say कि वो उसने जहाँ से enter किया fair से, वहां से लेकर whatever the things he have observed, right? वही चीजें वो सारी फिर से वो बंदा दिखा रहा है, right? शायद पहले उसने स्वीट्स देखे थे, गार्लैंड्स देखे, एवरीथिंग, एंड देन balloons and all such thing. जिस चीज की उसने डिमांड की थी from his parents, the man is trying to giving him so that कि उसका attention कहीं और जाए, right? वो कहीं थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे और वो शांत हो, फिर हम कुछ करें. So that's why अब वो बंदा उसे बलून्स वाले के पास ले गया और वो बलून वाले के पास क्या बता रहा है कि थिंकिंग उसे ये लगा कि शायद ये ब्राइट कलर बलून्स के देखकर उस बच्चे का माइंड थोड़ी देर के लिए वहां से भटक जाए, वो उस अटेंशन में से अपने मम्मी पापा की जो जितना दुखी है उसमें से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए. Would you like a rainbow colored balloon? अब वो बंदा क्या पूछ रहा है? He pursuasely asked. राइट वो जानबूझ के वो उसे क्या पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ये बलून चाहिए, कलर रेनबो कलर्ड बलून, राइट? वो उसे उसकी क्वालिटी दिखा रहा है कि सी हाउ ब्राइट कलर्स आर, सी हाउ इट्स अ फुल ऑफ रेनबो कलर, डू यू वांट दिस, you will enjoy to have this, right? So he was trying to pursue him. We can say कि वो उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, राइट? वो उसे उस चीज पे बिलीव करवाने की कोशिश कर रहा है जानबूझ के कि you should have this. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother and father. अब फिर से वो बच्चा क्या कर रहा है? वो पहले उसने क्या किया कि पहले वो जो म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी और वो मैन वो बोल रहा था कि you just try to listen the music, it's so soothing. तो उसने अपने बच्चे ने कान में उंगली डाल के बंद कर दिया कान कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, चिल्लाने लगा, राइट? अब क्या हुआ? अब वो बलून्स दिखा रहा है कि तुम्हें ऐसे बलून्स चाहिए, तो उसने वहां से नजर हटा ली, राइट? He don't want to see the balloons and just sobbed. फिर से वो रोते रोते कहा कि he wants mother and father, right? In short, he was just crying and asking for his father and mother. Okay. The man still trying to make the child happy. फिर भी वो बंदा कोशिश कर रहा है. He is really a good man, right? फिर से वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है. He is
गिविंग हिज 100% वी कैन से, वो उस बच्चे को फिर से पुश करने की कोशिश कर रहा है और वो क्या बोल रहा है, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर्स सेलर सेट। अब वो बच्चे को कहाँ ले गया, वो जो गेट के पास एक फ्लावर सेलर जो हमने आगे देखा था, जो जहाँ पे बैठा था वहां उसके पास ले गया। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। अब वो वहां पे ले गया सो दैट कि फिर से वो बच्चे को शायद शांत कर पाए या उसको उसके रोने से निकाल सके। सो क्या बोल रहा है वो मैन, लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, कि बोल देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है फ्लावर्स की, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, बोले तुम्हें चाहिए ये गार्लैंड, ये गार्लैंड अपने गले में पहनना चाहते हो, मतलब ये हार जो है फ्लावर्स का, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है तो उसे तुम्हें गले में पहनना है। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother and my father. अब क्या हुआ, we have seen उसे म्यूजिक सुनाया तो कान बंद कर लिए, बलून्स दिखाए तो आंखें बंद कर ली। अब वो बोल रहा है कि फ्लावर्स की स्मेल करो, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, तो उसने वहां से भी वो क्या कहते हैं अपने नोज को टर्न कर लिया फ्रॉम द बास्केट ऑफ दैट फ्लावर्स, और उसने फिर से वही चीज बोली, दैट इज ही वांट हिज फादर एंड मदर। ठीक है, रिटेरेटेड का मतलब क्या होता है, रिटेरेटेड वी कैन से ही डोंट वांट टू, उसे यहाँ वहां कहीं पे भी उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड द थिंग वी कैन से ही इज मेकिंग क्लियर, ओके, वो क्लैरिटी दे रहा है। ओके, रिटेरेटेड का मतलब होता है कि एक ही चीज बार बार बोल के क्लैरिटी देना कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला दो। गेटिंग, ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्लियर इट आउट। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसने सोचा कि ठीक है ये भी नहीं मान रहा, तो उसने सोचा कि ठीक है कि फिर से सी यहाँ पे क्या बोला, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। उसने सोचा कि ये इतनी सारी चीजों में नहीं माना, तो उसने सोचा कि अब एक चीज पे तो ये बंदा मान ही जाएगा ये बच्चा, और वो क्या, दैट इज स्वीट्स। तो अभी तक तो वो डिसकंसोलेट था, डिसकंसोलेट यानी अभी तक तो वो उसे कंसोल नहीं कर पाया, उसे मना नहीं पाया, उसे शांत नहीं कर पाया, बट हो सकता है कि अगर मैं उसे गिफ्ट ऑफ स्वीट्स दूं, मैं उसे मिठाई खिलाऊं, तो शायद ये बच्चा मान जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ अ स्वीट शॉप। अब ये बंदा उसे स्वीट शॉप के पास ले गया कि शायद स्वीट्स को देखकर तो वो कंसोल हो ही जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू हिम, कि यहाँ से तो वो मना नहीं कर सकता। What sweets would you like, child? अब वो क्या बोल रहा है कि अच्छा तुम्हें कौन सी स्वीट्स पसंद है, वो उसे वापस डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह से वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। फर्स्ट वाज द स्नेक चार्मर, म्यूजिक एक था, राइट, कि उसे म्यूजिक सुनाया और ही वाज ट्राइंग टू सी के देखो स्नेक चार्मर कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, जस्ट ट्राई टू लिसन इट, ओके, और उसे कंसोल करने की कोशिश की, बट उसने क्या किया, अपने कान बंद कर दिया, ही वाज नॉट रेडी टू लिसन। देन सेकंड व्हाट हैपेंड, सेकंड वो बलून वाले के पास ले गया कि बलून से वो शायद खुश हो जाए। नहीं, सबसे पहले तो उसने यही किया कि राउंड अबाउट में बैठने की बात की, कि जो उसे बैठना था राउंड अबाउट में, तो उसने वो भी मना कर दिया। देन स्नेक चार्मर, देन balloons with balloons also he was not happy to see that, right। फिर उसने गार्लेंड्स वाले के पास ले गया, दैट इज फ्लावर्स वाले के पास, वहां पे भी उसने डिमांड कहा कि वो उसे बाई करके देगा उसके लिए, ही वाज नॉट कंसोल्ड। फाइनली ही थॉट कि शायद बच्चे को स्वीट्स पसंद और शायद इससे वो कंसोल हो जाए। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want father and I want mother. But यहाँ पे भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ दैट मैन। फिर से यही हुआ कि उस बच्चे ने वहां स्वीट शॉप से अपना फेस घुमा दिया और वापस रोते रोते एक ही चीज बोलने लगा, आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। So students, here the story gets end, right? It is by Mulk Raj Anand. You would be thinking कि ये कैसी स्टोरी है यार, बच्चा खो गया, कब से हम यही रीड कर रहे हैं, बट वो बच्चा मिला कि नहीं मिला, what was the end, ये completely we can say incomplete ही दिया है यहाँ पे वो बताया ही नहीं है कि लास्टली वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल पाता है या नहीं मिल पाता। जस्ट मुल्क राज आनंद ने यही बताने की कोशिश की है कि पहले उसके पास जो पेरेंट्स थे, he was trying to get everything, right, उसे दूसरी सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, उसे वो सारी चीजें चाहिए थी,
बट अब क्या है कि अब उसे वो सारी चीजें मिल रही है, बट he is just demanding his parents. So this is what Mulk Raj Anand needs to explain, wants to explain, sorry, कि हियर इट शोज कि बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए जो लव है, राइट, अनकंडीशनल लव है, इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड थ्रू दिस, ओके, दैट एट द एंड ऑफ द स्टोरी आल्सो ही जस्ट वांट हिज पेरेंट्स. हमने सब कुछ देख लिया, उस बंदे ने उसे हर तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, राइट, ही ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम इन ऑल हिज वेज, बट ही वाज जस्ट इन द मूड दैट बस उसे उसके पेरेंट्स चाहिए. ही वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग. उसे कंसोल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. He refuses each and everything, right, whatever he was getting, whatever it was offered by the man. So this was, we can say, the incomplete story. You might not enjoy that this end के ठीक है कि पता चल गया बच्चा फेयर में गया, बच्चा खो गया, बट बाद में हुआ क्या उस बच्चे के साथ, दिस वाज कम्प्लीटली बताया नहीं है. ठीक है, द एंड वी कैन से कि नॉट क्वाइट सूटेबल, थोड़ा एंड अटपटा सा है, बट दिस इज द एंड. सो फाइनली वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर हियर. फाइन. So now comes rectifying error. We have already discussed in part 1 and part 2. Part 1 I have given you one example and explained it what is rectifying error, right? And second part I have also given one of this question to sort it out, right? So here also I am giving the same. Okay, here it is given there is an error in each line. You have to find out and identify a wrong word, and you have to write it down in a correct word in the given space. So let's read out what it's given. While climbing up a mountain, a group of boys saw and bear walking towards them. One of them suggests that they should climb up a tree. The boys quick followed his instruction. They felt safe as he watched a bear walk past the tree. So this is the paragraph. You have to find out the correct one. You found each of its line have one error here. Okay. So hope you got this, how to solve it out, and again you have to write down the correct answers, okay, and you have to send it me in WhatsApp. ठीक है, आपको इसका पिक क्लिक करके मुझे WhatsApp करना है, then after only I am going to give you the correct answer of it. ठीक है, इसके correct answers मैं आपको बाद में दूंगी if I am getting each and every student's images of this solved one. ठीक है, so at rectifying errors हमारे एग्जाम्स में भी आने वाले हैं, and that's why we are doing this. So please be careful. अगर कोई queries है, you are free to ask me. Okay, fine. Here I'm ending my lecture. We have completed the supplementary 1. Hope you liked the story and you enjoyed it, and especially you can able to understand it very well. Fine. So bye bye. Take care, all of you. See ya.